Good morning, all of you. I am Gaurav Bharat. Today I will teach you the law of contract. You know, we have many times listened about the terms contract or agreement. लोग कहते हैं कि हमने एग्रीमेंट करा लिया है, हम कोई चीज़ परचेज करने वाले हैं. तो क्या मतलब होता है एग्रीमेंट का, क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का? What is the difference between contract and agreement? Today I would like to give you the information and detailed study of law of contract. First one, from starting the very beginning, the contract is found everywhere in all the trade, commerce and interpretations. Whenever there is any transaction or commercial transaction, there is a need of making a contract and the performance of contract by both the parties. If we talk about the definition and meaning of contract, so contract is a term which gives the rights and duties for both the parties, for which object the contract is made. The types of contract. So there are some categories of contract like valid contract, if all the essential elements of contract is present in the contract, then the contract will be valid. Void contract, if there is any contravention of law in any agreement, then the contract will be void. There are some essential elements which constitute an agreement into a contract. It is defined in the section 2X of Indian Contract Act that an agreement enforceable at law is a contract. So enforceability is the basic element. If there is no enforceability, then the contract will be void. यदि जो सामान्य शर्तें हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की कि जिससे कोई एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो यदि उन सामान्य शर्तों का या एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल ना किया जाए या वो अगेंस्ट लॉ हो, तब पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. अब एक थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी और है, दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Voidable contract means any contract in which one party has a right to make it void, then the contract will be voidable. जब कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के किन्हीं कारणों से या किन्हीं तरीकों से, चाहे वो फ्रॉड, चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो धमकी उत्पीड़न जिसे अपन कर्जन बोलते हैं, चाहे अंडर इन्फ्लुएंस हो, उसके द्वारा सम्मति प्राप्त करता है और फिर कोई एग्रीमेंट होता है, तो जो पक्षकार बैडली अफेक्टेड होता है, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था लेकिन उसने दबाव में या दुर्व्यवदेशन में या कपट के या अनुचित दबाव के परिणाम स्वरूप कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस पीड़ित पक्षकार को अधिकार होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है. ही कैन इलेक्ट टू चूज make it void or he can elect to choose to carry forward contract. वो contract को go through भी कर सकता है, उसमें उसको continue भी कर सकता है, और यदि वो चाहे तो पीड़ित पक्षकार या जो badly affected हुआ है वो उसको void भी करा सकता है. तो contract which is able to be void, that is called voidable contract. Okay, so these are the categories of contract. कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि फर्दर कैटेगरी क्या हो सकती है, नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट हो सकते हैं,
प्राइवेसी एग्रीमेंट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है। द पर्सन्स those are taking the goods and services from the other parties has to give the consideration. So that is called as normal commercial transaction. Software agreement in which one person is the software developer and who is giving any services or full license to the other parties to use that software, or he can sell all the software. So that is called software agreement. Privacy agreement in which there is some privacy in a particular contract. When the privacy clause is defined in any contract, then it would be the basic essential conditions to make it private. Confidential agreement, this is also an important clause in a commercial contract, that if there is any trade secret, it cannot be revealed by any person. यदि कोई ट्रेड सीक्रेट है या किसी एग्रीमेंट की शर्तों में बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है या कोई कॉन्फिडेंशियल को एक्सपोज नहीं करना है, रिवील नहीं करना है, बताना नहीं है, तो उस प्रकार के एग्रीमेंट में उस क्लॉज के अकॉर्डिंग उस बात को बनाए रखना, छुपाए रखना या कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता बनाए रखना ये पक्षकारों का कर्तव्य है। अब अपन आते हैं इंडियन लॉ। भारतीय अधिनियम कौन सा है जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है? सो द लॉ which deals in contract in India is called Indian Contract Act 1870. भारतीय संविदा अधिनियम 1870. It is made in the by the British and it came into force on the 1st September 1872. तो आज का से 1872 से आज तक ये कानून सरवाइव कर रहा है और सक्सेसफुली सरवाइव कर रहा है। सभी महत्वपूर्ण शर्तें, सभी महत्वपूर्ण तत्वों को इसमें समाहित किया गया है। बस इसमें 2 चैप्टर, एक चैप्टर था सेक्शन 76 से 122 तक जिसमें सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन थे, वस्तुओं की विक्रय की बात करता था। तो 1930 में उस एक्ट को रिपील कर दिया गया, उस प्रोविजन को रिपील कर दिया गया। इंडियन लॉ एंड हिस्ट्री, अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन लॉ एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो 2 एक्ट ऐसे थे, एक तो सेल ऑफ गुड्स जो 1930 में आया एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया। ये दोनों के दोनों एक्ट या इनसे रिलेटेड जितने भी कानूनी प्रावधान थे, जो भी प्रोविजन थे, वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड। लास्ट चैप्टर जो कॉन्ट्रैक्ट का था जो आज रिपील्ड हो चुका है, वो कभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करता है और सेक्शन 76 से 122 तक ये सारे प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं। एज सून एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एनफोर्स्ड इन द ईयर ऑफ 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड इन द ईयर ऑफ 1932, all the provision which is relevant in the Indian Contract Act was repealed by the government. क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर कार्य के लिए कोई एक स्पेसिफिक कानून बना दिया तो फिर वो 2 जगह सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिपील करके उसके स्पेसिफिक प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स में बना दिए गए और पार्टनरशिप एक्ट में बना दिए गए। तो हिस्ट्री में अपन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, and second one is partnership act.
They are defined in the Sale of Goods Act 1930, and all the provisions which gives the rights and duties and which gives the condition and procedure for the formation of any partnership or any firm, how a firm can be developed and how a firm or partnership can be bind up. All the provisions made up in the or defined in the Partnership Act 1930. So this is the history of Indian contract. वैसे भी अपन if we talk about the primitive period, तो 1872 में जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसके पहले भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ने जन्म लिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने जन्म लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर कानून के पहले कानून का सर्वाइव या एग्जिस्टेंस ही होता है। If we talk about the historical jurisprudence, then we will find law is not made, law is found. Law is found in the traditions and history of any society. Okay? तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन 1872 से भी पहले होते थे। उसके पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाइड नहीं था, ट्रेडिशन में था। आज भी बहुत सारे व्यापार के ट्रेडिशन होते हैं। There are so many trades, customs in the society and which has to be followed. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है यदि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में कोई ट्रेड फॉलो किया जाता है, कोई ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, तो वो स्पेशल ट्रेडिशंस हमेशा जनरल लॉ में प्रिवेल करता है। स्पेशल लॉ इज ऑलवेज प्रिवेल इन जनरल। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे मेजर एलिमेंट्स है कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एसेंशियल जो है वो है आपके offer and acceptance. There must be two parties. One will be the offerer and second will be the acceptor. If any offer is communicated to the other person and he assented for that offer, then it becomes promise. जब एक व्यक्ति के ऑफर को एक व्यक्ति अपनी किसी इच्छा को दूसरे के सामने प्रकट करता है जिससे कि वो उस कार्य के लिए सहमति प्राप्त कर ले, उसको ऑफर बोलते हैं। सेकंड पर्सन, if we talk about the acceptor, if he assented with the will of offer, then he will give the communication of acceptance to the offerer. एक बार व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया है यदि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और उसका कम्युनिकेशन ऑफर को पहुंचा दे तो ये एक वचन बन जाता है, इसको कहते हैं प्रॉमिस। अब प्रॉमिस, ये प्रॉमिस बन गया है। प्रीमिटिव टाइम में लोग वचन के पक्के होते हैं। एक कहावत है, जान जाए और वचन जाए। पहले के लोग भारतीय संस्कृति में अपने वचन का पालन करते थे। जो वचन देते थे उस वचन का पालन वो अपने प्राण देकर भी करते थे, लेकिन वचन को टूटना नहीं थे। सोसाइटी जैसे जैसे बदलती गई तो लोगों ने वचन का पालन करने में लापरवाही करी, वचन को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट का सर्वाइव। तो प्रॉमिस जो वचन होता है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, वो होता है कंसिडरेशन। That is called consideration. If there is consideration must be valid. जो प्रतिफल जो होता है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। यदि कंसिडरेशन प्रॉमिस के साथ कनेक्ट होता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। If there is a valid consideration in any promise, then it will be an agreement. जब करार का मतलब होता है प्राइस ऑफ प्रॉमिस, कंसिडरेशन मीन्स द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। वचन के बदले में जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है।
जब कोई प्रॉमिस में वचन में एक प्रतिफल ऐड हो जाता है तो वो करार बन जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट है अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। जब इस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी, जैसे अपन बोलते हैं प्रवर्तनीयता, आ जाती है, जब इस करार में प्रवर्तनीयता आ जाती है, मतलब कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जा सके, जब किसी एग्रीमेंट को कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जा सके, प्रवर्तन कराया जा सके, उसका कंप्लायंस कराया जा सके, तब ही कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो व्हेन एग्रीमेंट्स इज कम अप विद द एनफोर्सिबिलिटी, देन इट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हमने सीखा कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब उसकी समरी है, ठीक है। अभी इसकी सम अप करते हैं इंट्रोडक्शन में। देयर इज ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन एवरी सोसाइटी। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन व्हिच द राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड फॉर बोथ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सही है, जिसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। void contract in which one of the essential element is not present, that is called void contract. And voidable contract means if there is no free consent, वो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 10 जब अपन पढ़ेंगे। Even there is no free consent, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, voidable हो जाता है ना। अब हिस्ट्री में देखें तो सेल ऑफ गुड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर 1872 में एनफोर्स हुआ। उसके बाद 1930 में सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे उन्हें हटा के सेपरेट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डेवलप कर लिया गया, जिससे वस्तुओं के विक्रय से संबंधित प्रावधान विकसित किए गए। सेकंड, जो पार्टनरशिप से संबंधित या रिलेटेड जो प्रोविजन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके लिए सेपरेट लॉ डेवलप कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। देन ऑल द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप was made repealed in Indian Contract Act, which relates with the partnership, and the separate act came into existence in the year of 1932 called Indian Partnership Act 1932. Now we can come to the formula which I have made or which I have developed. When there is offer plus acceptance is equal to promise. Offer, जब किसी प्रस्ताव में सहमति हो जाती है तो कोई वचन बन जाता है। When such promise, जब ऐसा वचन come up with the considerations, या involve the considerations, then it would be an agreement. जब किसी वचन में प्रतिफल का समावेश होता है तो वो करार बन जाता है। उसी करार में जब एनफोर्सिबिलिटी आती है, एनफोर्सिबिलिटी जब कब आएगी, जब सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स को वो फुलफिल करेगा। सेक्शन एनफोर्सिबिलिटी में अपन क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सेक्शन 10, जब सेक्शन 10 को सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी एनफोर्सिबिलिटी के जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, यदि उसको फुलफिल करता है कोई एग्रीमेंट तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्या कहता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, हिस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।